जीवन प्रभु अर्पण मेरा जीवन प्रभु आभार भरा ये दिल से अर्पण है प्रभु मेरा ये जीवन ये तन ये मन ये जीवन पावन कर दे तू मेरा जीवन नया बना दे तू मेरा जीवन प्रभु तू कितना महान है प्रभु तू कितना महान है अर्पण मेरा जीवन प्रभु हमारी प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर रीता जोसेफ के समक्ष एक एक करके दोहराएंगे और माननीय विकार जनरल श्रद्धेय फादर मुक्ति प्रकाश बिंज और हम सभी उनके समर्पित जीवन की गवाही देंगे। According to the rule and life of the brothers and sisters of the Third Order Regular of St. Francis and the constitutions of our congregation of Franciscan Sisters of Dillingen, to accomplish this, may God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit and the Holy Gospel help me. For the sake of the kingdom of God, in poverty and in obedience, according to the rule and life of the brothers and sisters of the Third Order Regular of St. Francis, and the constitutions of our congregation, accomplish this, may God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and the Holy Gospel help me. Amen. By the authority entrusted to me, I accept your vows in the name of the Church for the congregation of the Franciscan Sisters of Dillingen. May you walk faithfully in the footsteps of St. Francis of Assisi and imitate his gospel way of living. In the name of the Father and of the Son, For the sake of the kingdom of God, in poverty and in obedience, according to the rule just of the Third Order Regular of St. Francis and the constitution of our congregation of Franciscan Sisters of Dillingen, to accomplish this, may God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit and the Holy Gospel help me. Sister Mary Rochegir, by the authority entrusted to me, I accept your vows in the name of the Church for the congregation of the Franciscan Sisters of Dillingen. May you walk faithfully in the footsteps of St. Francis of Assisi and imitate his gospel way of living. In a celibate life for the sake of the kingdom of God in poverty and in obedience, according to the rule and life of the brothers and sisters on the Third Order Regular of St. Francis and the constitution of our congregation of Franciscan Sisters of Dillingen. To accomplish this, may God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, By the authority entrusted to me, I accept your vows in the name of the Church for the congregation of the Franciscan Sisters of Dillingen. May you walk faithfully in the footsteps of St. Francis of Assisi and imitate his gospel way of living. In the name of the Father and of the joy रखें।
अस्थायी व्रत धारण के द्वारा ख्रीस्त के प्रति वचनबद्ध अपने प्रतिज्ञा और ब्रह्मचार्य का ईमानदारी से पालन करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आशीष के संग दमियानी गिरजाघर के क्रूस द्वारा सेंट फ्रांसिस से बातें की और उन्हें कलीसिया के नवीनीकरण का कार्यभार सौंपा। इस क्रूस वास द्वारा आशा और सच्ची सेवा की भावना प्रदान करे, जिससे वे आपकी इच्छा पूरी कर सके। पूर्ण रूप से प्राप्त करने हेतु मैं दुनियावी चीजों और उसकी सभी सुंदरता का त्याग करती हूँ। हे अभी माननीय विकार जनरल श्रद्धेय फादर मुफ्ती प्रकाश मिंज हमारी नवनीत धर्म बहनों को विशेष आशीष सभी प्रकार के वरदानों से परिपोषित किया। प्रथम मानव आदम ने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर भी उसे त्यागा नहीं बल्कि तूने उसकी सुधि ले। तूने विश्वास के पिता इब्राहिम, नूह, मूसा के साथ अपनी प्रतिज्ञा निभाई और युग युग की जिन पवित्र महिलाओं को तूने चुना प्राप्त हुई। इन धर्म बहनों को तेरे पवित्र आत्मा से आलोकित कर, जिससे कि इनका संपूर्ण जीवन फलदायी बने। बपतिस्मा का चिन्ह इनके जीवन में सदा चमके, तेरे प्रेम में समृद्ध होने के लिए इनका। प्रिय धर्म बहनों, सिस्टर मेरी श्रुति दाबी, सिस्टर मेरी अनुपमा टप्पो, सिस्टर मेरी रोशनी गीत, सिस्टर मेरी अमीशा मिंज, भारत के डिलिंगन सेंट फ्रांसिस धर्म संघ के सदस्य के रूप में हम आप लोगों को स्वीकार करते हैं। जो कार्य और जिम्मेदारी हमें पवित्र कलीसिया ने दी है, उसे हम अपनी क्षमता के अनुसार समर्पित होकर निभाएंगे। अब से संस्था की हर चीज में आपकी साझेदारी एवं भागीदारी होगी। हृदय की कोमल एवं विनीत प्रभु के गुण को अपने जीवन द्वारा औरों में प्रकट करें। इस तरह प्रथम व्रत धारण का अनुष्ठान समाप्त। नाच के साथ नवनीत धर्म बहनों को प्रभु को समर्पित करेंगे। और आकर्षित कर सकूं। हे प्रभु, मुझे इस गुलाब के फूल के रूप में ग्रहण कीजिए।
हे दयालु एवं अनुकंपा को इंगित करता है और यह हमेशा लोगों के साथ आध्यात्मिक हथियार के रूप में रहता है। उसी प्रकार आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भूषित कीजिए, जिससे कि मैं आपके प्रेम एवं वचनों से आलोकित होकर दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकूं। हे पिता, यह तुझे ग्रह्य हो। जीवन को प्रभु में खोकर तथा प्रभु के पवित्र आत्मा से आलोकित होकर दूसरों तक प्रभु के प्रकाश को पहुंचा सकूं। हे प्रभु यीशु, इस मोमबत्ती के रूप में मेरे जीवन को ग्रहण कीजिए। स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाए। इसमें हे प्रभु हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान पवित्र आत्मा के साथ सर्वगत सम्मान तेरा ही है।
इस प्रेम भोज में बुलाए गए हैं। हम सब जो प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस प्रेम भोज में बुलाए गए हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, संत फ्रांस से प्राज्ञा तथा बुद्धि की आत्मा, सुमति और धार्या का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर आप लोग सदा विश्वस्त रहे, आप लोगों को सांत्वना देते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के यह सब आप ईश्वर यह सब कराए, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और यह सत्य प्रतिज्ञा किया है। ईश्वर का वचन आपके पथ को आलोकित करता रहे, सुसमाचार के प्रति विश्वास ने बनाए रखे, आपके दुख सुख में उसका दाहिना हाथ संभाले और सबल करे, ताकि उन्हें प्रभु यीशु की खुशी में सम्मिलित होकर स्वर्गिक आनंद उठाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। आप प्रथम व्रत धारण किए हैं, अपने धर्म संघ में अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाए और उदारता पूर्वक तेरी सेवा कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इस समारोह में विश्व बलिदान के दौरान आप
प्रत्येक क्षण पर विशेष आशीष की प्रार्थना पढ़ी जाएगी और आशीष दी जाएगी। इसलिए आप सभी की भक्ति भावना के साथ ईश्वर से आशीष पाने के लिए अपना सिर झुकाएं।